Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to discuss about the chapter Indigo. Earlier we have already discussed the first and second page of this chapter, in which we have read that this chapter was taken from the biography of Mahatma Gandhi, and the biography was written by a British author, Louis Fisher, who had written this under the title The Life of Mahatma Gandhi. So here in this chapter we have seen that the author had a small conversation with Mahatma Gandhi in 1942 at his ashram. Whose ashram? Mahatma Gandhi's ashram. So when he had gone to his ashram, he just asked him about the movement which he has started, the civil disobedience movement. And Mahatma Gandhi was giving him the detailed information about it. So the conversation is between Mahatma Gandhi and Louis Fisher. So when we are going to read this chapter, we will see that the Mahatma Gandhi is giving the information to Louis Fisher and he is telling how it begins. So he just said how he started urging the British government to leave the India, and from where this very movement was started. So he's just giving a small anecdote about the December 1916 annual convention, which was organized by Indian National Congress in Lucknow. Now, one thing is required to be understood, that Indian National Congress was not a political party then. That was a party which was made for the liberation of our country. It was just an effort to provide the emancipation to the countrymen. And we have seen that how in that movement, in that meeting when he is having the annual convention 1916, poor peasant Rajkumar Shukla also visited there. When he just visited there, he was just looking for the help of Mahatma Gandhi and he just want him to help them, and he had given him the small information about the place from where he had come. He had come from Champaran, and he just asked him for the help so that the justice to the poor peasants can be provided. So later on we have seen that Mahatma Gandhi was already having his schedule, he is already having his meeting, and he is saying that he is having appointments in Kanpur, so it would be quite difficult for him to be with him. So he just said on such and such date he'll be in Calcutta. So from there they'll be going to Bihar, Champaran. So बेटा इसमें अब ये है कि महात्मा गांधी जी ने उसको हाँ क्यों की? Why he said yes? Because of his resoluteness, because of his firmness. He was very firm. He just wanted that Mahatma Gandhi has to come with him so that the peasants can be helped, so that he can be helped by him. And here we have seen that how we just forget about the sacrifices and the endeavors putting by these laymen who are not anywhere in the historical books or historical records. So हम
अक्सर कहते हैं ना कि हमें इमारतें दिखती हैं बड़ी बड़ी, पर हमें इमारतों को के नीचे जो बेस है, जहाँ से वो मूवमेंट स्टार्ट हुई, किसने एफर्ट्स डाले, वो नहीं दिख पाते। तो राजकुमार शुक्ला जैसे लोग हमें अक्सर हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताया। और एक चीज और भी यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी मूवमेंट है वो कभी भी एक पर्सन के कारण नहीं चलती, रादर उसमें बहुत सारी लोग जो है वो जब जुड़ने लग जाते हैं तो वो मूवमेंट सक्सेसफुल होती है। और महात्मा गांधी जी भी यहाँ पे यही बताना चाहते थे। यहाँ इस स्टोरी में मैसेज ही ये दिया गया कि व्हेन वी विल बी यूनाइटेड वी कैन मेक द इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। एक बार यूनाइट होने की बस देर है, उसके बाद तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया बस। तो वही काम मुश्किल है, और यही चीज यहाँ पे गांधी जी ने। अब चलो इसके आगे का पार्ट देखते हैं। आगे के पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार शुक्ला जो है उनका वेट करते हैं वहीं पे जहाँ उन्हें मिलने के लिए कहा था कैलकाटा में। वो अपने हॉन्चेस में बैठे हैं, और ये हॉन्चेस में बैठना वैसे होता है जैसे मजदूर लोग बैठते हैं अपने हॉन्चेस पे, जब मीन्स की आपने अक्सर देखा होगा, तो वैसे ही वो बैठे। अब वहां से इनको हेल्प मिली। अब गांधी जी और वो दोनों, अब ये जैसे बोर्डेड अ ट्रेन टू पटना जाने के लिए ये बोर्ड करते हैं ट्रेन। अब यहाँ पे पहले इन्होंने जब पटना में जाने लगते हैं, उससे पहले का एक इंसिडेंट और भी है जो बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। वो इंसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के घर का है। वहाँ पे वो है नहीं, उन्हें मिलने के लिए वो जाते हैं वहाँ पे। और उधर राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट्स हैं, दे कंसीडर्ड महात्मा गांधी एंड राजकुमार शुक्ला एज अ डाउन ट्रॉडन, एज अ दलित। सो यहाँ हमारी सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी थी, हमारी उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में किस तरह से एक स्पेसिफिक स्ट्रेटा जो था सोसाइटी का, जिनको हम हेल्पर क्लास कह देते थे या जिन्हें हम डाउन ट्रॉडन्स कह देते हैं, दलित वर्ग कह देते हैं, उनके साथ एक भेदभाव, छुआछूत की जो चीजें थी वो दिखाई गई है। तो उसमें भी थोड़ी सी मतलब कि लाइटनिंग करने की कोशिश की है, सो दैट कि यहाँ बेटा ये चीज पता चलती है कि उस वक्त का जो इंडिया था, वहाँ उस टाइम लोग कैसा सोचते थे, और किस तरह से ये छोटे छोटे जो इंस्टांसेस थे लाइफ में महात्मा गांधी जी के हो रहे थे, ये उनको इंस्पायर कर रहे थे गो फॉर द बिग मूवमेंट। अब वो यही चीज तो वो करते थे, he never bother about the big things, rather he just focus on the small things। उनका मानना था कि छोटी छोटी चीजों को सेटल डाउन करते जाओ, बड़ी चीज अपने आप हो जाए, है ना। तो यही उनकी लाइफ का एक मैसेज था जो उन्होंने दिया। और अब इसके आगे का पार्ट, इसके आगे हमने देखा कि वो जस्ट बोर्डेड अ ट्रेन तो मुजफ्फरपुर में जब वो पहुंचते हैं, वहां पे उनको रिसीव करने के लिए जेपी कृपलानी के जो स्टूडेंट्स हैं, और जेपी कृपलानी खुद जो प्रोफेसर है, गवर्नमेंट स्कूल के प्रोफेसर हैं, वहां वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब जेपी कृपलानी जी उनको रिसीव करते हैं। लेटर ही जस्ट हैड अ स्टे ऑन प्रोफेसर मलकानी, हु वाज द स्कूल टीचर, अगेन हु वाज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। तो दैट वाज वन ऑफ द यू कैन से अ dauntless step taken by Malkani ji. Why? Because those days the advocates of home rule are not favored by the labor and specifically by the government officers. Why? This might be a question you are having in your mind. See, अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो और किसी ऐसे पर्सन को अपने घर में स्टे करवाते हो, उसकी मेहमान नवाजी करते हो, जो कि खुद उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो क्या होगा? नहीं ना होगा, ठीक। तो ये एक्चुअल में जो मलकानी जी थे उन्होंने बहुत डेयरिंग स्टेप उठाया था, क्योंकि ये एक तरह उनकी जॉब भी जा सकती थी, बट स्टिल ही हैड डन दैट। सो सी, हमें, मैंने वही कहा ना, हम छोटी छोटे जो रोल्स होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस किया होता है, हम उनको भूल जाते हैं। हिस्ट्री हमेशा
एक बिग इमेज दिखाती है, एक वास्ट पिक्चर दिखाती है, बट वो कभी भी इन छोटी चीज़ों के ऊपर एम्फेसिस नहीं है। बट व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट बायोग्राफीज, autobiographies or literature, then we just want to know about these small things. इसीलिए लिटरेचर की इम्पोर्टेंस है। So we will be reading the remaining part of this chapter now. तो अभी तक आई होप जितना हमने स्टडी किया आपको समझ आ गया। ये मैंने आपको एक रिकैपिचुलेशन दे दिया है। तो लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट। और अगर इतना जितना हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया है, इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask me for that. You can just give the comment in the comment box, और comment मैं उसके बेसिस पे एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा about that. And let's start the remaining part. So ताकि हम अभी इस चैप्टर को कंप्लीट भी करना है, we just have to finish this so that we just move to the next topic that is in your periodic test too. So let's move on. So अभी तक हमने देखा कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो मलकानी जी के घर में स्टे करते हैं, और यहाँ पे हमें पता चला कि किस तरह से उन्होंने उस टाइम पे रिस्क लिया था एक होम रूल के सपोर्टर को अपने घर में स्टे करवाकर, बिकॉज ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क उस वक्त लिया। तो इसका आगे का पार्ट देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट। देखिए बेटा, गांधी जी के आने की जो खबर थी, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली, और उनके मिशन का नेचर क्या था, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही थी थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। ये मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण तक खबर बहुत दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के जो थे, वो पैदल ही गांधी जी से मिलने के लिए चल पड़े, एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन। अपने चैम्पियन को, मतलब अपने हीरो को मिलने के लिए वो सारे लोग पैदल ही चल पड़े थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उनको बुलाया गया ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। गांधी जी ने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी, इसलिए उन्हें बुलाया गया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप इन कोर्ट। उन्होंने कोर्ट में पेजेंट ग्रुप्स को फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट किया था। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने उन केसेस के बारे में बताया जो केसेस वो फार्मर्स के लिए लड़ रहे थे, एंड जो साइज़ ऑफ फ़ी है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ फ़ी वो उनसे चार्ज कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फ़ी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी लॉयर्स को डांटते हैं कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में वो फ़ीस क्यों चार्ज कर रहे हैं। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। अब वो कहते हैं, मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा हूं कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना ही नहीं चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस कोर्ट में लेके जाने के बहुत कम फ़ायदे होते हैं। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फेयर स्ट्राइकन। जहाँ पे पेजेंट्स जो है बहुत डरे रहते हैं और सहमे से रहते हैं, मतलब उनको जस्टिस नहीं मिल पाती। सो द लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फेयर। प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। उनके लिए जो रियल रिलीफ है वो क्या है कि वो डर से आज़ाद हो। दे शुड बी फ्री फ्रॉम फेयर। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड। अब देखिए बेटा, ये जो अभी की जो हमने गांधी जी की और लॉयर्स की कन्वर्सेशन हमें दिखाई गई है, उसमें ये पता चला कि गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी। गांधी जी कभी भी मीन्स की जो कोर्ट सिस्टम है जो आज हम फॉलो करते हैं, इस तरह के कोर्ट सिस्टम के फेवर में नहीं थे। वो पंचायत के फेवर में थे, बिकॉज़ वहाँ हर पर्सन, स्पेसिफिकली जो फार्मर्स होते थे, वो बड़े फेयरलेसली अपने पॉइंट को रख पाते थे, बिना किसी डर के, बिना किसी तरह की इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के। तो ये वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। तो आगे का पार्ट देखते हैं। जो मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। वो ज़्यादातर इंग्लिशमैन ने उनको ओन किया हुआ था। अब हमें तो ये पता है, देखिए कि
इंडिया में शुरू से ही लैंडलॉर्ड सिस्टम था, जमींदारी प्रथा चलती थी। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी वही चीज़ की जो इंडिया में पहले से हो रही थी। सो दैट वाज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और वहाँ पे वर्क कौन कर रहे थे? इंडियन टेनेंट्स कर रहे थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। अब जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी वो क्या थी? इंडिगो थी। उन दिनों ज़्यादातर इंडिगो पे एम्फेसिस दिया गया था। क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश कंट्रीज़ को चाहिए था इंडिगो एज अ रॉ मटेरियल, जिसको वो आगे यूज़ करते थे अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और बाद में वो एक्सपोर्ट करते थे। तो इंडिया से उन्हें काफ़ी यू कैन से चीप प्राइस में इंडिगो मिल जाती थी, तो वही वो काम यहाँ पे कर रहे थे। The landlord compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब देखिए, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने कंपेल किया सभी टेनेंट्स को टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, कि इंडिगो में आपने या तो 3/20 या 15% जो होल्डिंग है उसमें आपने इंडिगो लगानी है, एंड द सेम हैज़ टू बी सरेंडर्ड टू द ओनर्स ऑफ द लैंड। जो लैंड ओनर्स हैं इंग्लिशमैन, उनको सरेंडर कर देनी है एज अ रेंट, एक रेंट के तौर पे। सो दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और इसका एक बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट था। इसी चीज़ के लिए तो अब देखिए बेटा, राजकुमार शुक्ला इसी चीज़ के लिए तो विज़िट करने गए थे गांधी जी के पास, इसकी ही तो जस्टिस चाहिए उन्हें। सो प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. अब देखिए बेटा, प्रेजेंटली जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना ली है। So they thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. तो वो ये एक तरह से उन्होंने एक एग्रीमेंट किया शेयर क्रॉपर्स के साथ कि उनको 15% एग्रीमेंट से रिलीव कर दिया जाता, मतलब अब उन्हें वो 15% देने की ज़रूरत नहीं है। द शेयर क्रॉपिंग एग्रीमेंट वॉज इर्कसम टू द पेजेंट्स. पेजेंट्स के लिए ये एग्रीमेंट बहुत ही इर्कसम था, आप कह लो फ्रस्ट्रेटिंग था, अनोइंग था। तो इर्कसम का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो, अनोइंग हो, मतलब कि जो आपको ठीक ना लगे। तो इस कारण से ये हमें तो पता चल गया कि पेजेंट जो थे वो विलिंगली नहीं इंडिगो लगा रहे थे, एंड मैनी साइंड विलिंगली, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विलिंगली इसको साइन किया था। दोज हु रेसिस्टेड एंगेज लॉयर द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स. जिन्होंने रेसिस्ट किया इसको, उनको लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स को हायर करके उनको डराया धमकाया. मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेजेंट. और इसी दौरान इस सिंथेटिक इंडिगो की खबर जो थी वो पेजेंट्स तक, इलिटरेट पेजेंट तक पहुंच गई, हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक. और वो क्या चाह रहे थे? वो कहते कि हमारे जो पैसे हैं वो हमें वापस दिए जाएं, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत 15% इंडिगो उन्होंने सरेंडर करनी थी. लेटर ऑन पता चला जर्मनी के पास तो ऑलरेडी सिंथेटिक इंडिगो बन चुकी है, अब उन्हें तो वो प्रोडक्ट चाहिए नहीं है, तो वो जो रॉ मटेरियल है अब उनके किसी काम का नहीं फार्मर्स का. तो फार्मर्स कहते हैं हमें उसके बदले में हमारी जो मनी है वो हमें वापस चाहिए, जो हमने एफर्ट्स किए, जो मेहनत की है और जो हमने वहाँ पे लगाई है इंडिगो. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. इसी पॉइंट में गांधी जी चंपारण में आते हैं. ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. और इसके बाद वो फैक्ट्स जो हैं वो उसके बारे में इसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास विजिट करते हैं. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि हम किसी आउटसाइडर को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देते. गांधी जी भी जवाब देते हैं कि वो आउटसाइडर नहीं है. नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट है. द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत. अब ये गांधी जी कह रहे हैं कि कमिश्नर ने मुझे मेरा मजाक उड़ाया, बुली किया उनको, एंड एडवाइज्ड हिम, और उन्होंने ये सलाह दे डाली कि आप अच्छा हो कि अगर तिरहुत छोड़ दें.
गांधी डिड नॉट लीव। अब गांधी जी भी यहाँ पे काफ़ी फॉर्म नज़र आ रहे हैं, तो वो जो है वो लीव करने के बिल्कुल भी आप कह सकते हो ऐसी उनकी कोई नोशन नहीं है दैट ही इज़ जस्ट गोइंग टू एस्केप, तो वो एस्केप नहीं करना चाहते। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी of the British Landlords Association. The secretary told him about that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was not an outsider. Then next Gandhi called on the British official commissioner of the Tirihut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirihut. तो वो उन्हें तिरहुत छोड़ने के लिए उन्हें कहता है। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं छोड़ते हैं तिरहुत। फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली, ठीक है। सो इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, रादर वो वहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण का कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई लॉयर्स जो हैं वो भी उनको अकम्पनी करते हैं। सो एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, और जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो बहुत सारा जो मल्टीट्यूड है, लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल हैं, वो गांधी जी को ग्रीट करने के लिए वहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट हैज़ हेड क्वार्टर, वो एक हाउस में जाते हैं और उसे यूज़ करते हैं एक हेड क्वार्टर की तरह। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू करते हैं। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. एक रिपोर्ट आई कि भाई पेजेंट के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया, और गांधी जी इसी चीज़ को जानने के लिए वहाँ जाने के लिए डिसाइड करते हैं। So he decided to go and see the next morning. He started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. तभी जो वहाँ पे पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर हैं वो उन्हें वहाँ रोक लेते हैं और उन्हें ऑर्डर करते हैं टू रिटर्न टू टाउन, कि आप टाउन वापस चले जाओ इन हिज कैरेज। गांधी कंप्लाइड, अब गांधी जी उनकी बात को मान लेते हैं, वो किसी तरह उसको अपोज नहीं करते हैं। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस। अब उनको उनके घर छोड़ने के बाद उन्हें ऑफिशियल नोटिस मिलता है टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि आप चंपारण इमीडिएटली छोड़ दें। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। गांधी जी ने उसमें लिखा कि वो इसको डिसोबे करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ सम्मन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और उसके बाद गांधी जी को एक सम्मन भी मिला कि कोर्ट में पेश होने के लिए। ऑल डे गांधी रिमेन्ड अवेक, ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ भेजा ताकि वो अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड के साथ उनको मिलने के लिए आएँ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भी भेजी। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उन्होंने इस मामले की पूरी रिपोर्ट वायसराय को भी भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पेजेंट्स, अगली सुबह जो थी वो पेजेंट्स की भीड़ के साथ वहाँ बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका था वो सिनेरियो। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उन्हें गांधी जी का साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड नहीं पता है। दे हैड मेयरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि एक महात्मा है जो कि उनकी हेल्प करना चाहते हैं, वॉज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, जो कि ट्रबल में है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. Please underline this line. So, अब ये थाउजेंड्स में जो इनकी डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने की, जिस तरह से ये इकट्ठे हुए और स्पॉन्टेनियसली ये इकट्ठे हुए, ये इस बात को शो कर रहा था कि ये ब्रिटिशर्स के डर से आज़ाद हो चुके थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी जी की कोऑपरेशन के बिना ऑफिशियल्स पावरलेस फील कर रहे थे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, और वो जो गांधी जी हैं वो क्राउड को रेगुलेट करने के लिए उनकी मदद करते हैं। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत पोलाइट थे, वो किसी तरह से मतलब कि किसी के साथ किसी तरह की कोई बहस ऐसी चीज़ें नहीं करते थे, रादर बहुत पोलाइट वे से अपनी बात रखते थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड, उन्होंने कुछ कंक्रीट प्रूफ रखे, उन्होंने कहा
कि प्रूफ दैट देयर माइट हिथरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, कि अब तक लोग जो थे वो डर के मारे, जो सो फॉर जो अभी तक जो चीज़ें चल रही थी, हिथरटू का मतलब होता है सो फॉर, कि लोग आपसे डर के मारे अनक्वेश्चन मतलब किसी तरह का क्वेश्चन नहीं करते थे, बट नाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट द इंडियंस, दैट द अवेकन्ड इंडियंस विल ask question, will challenge the decision which is given by the authorities. तो अब जो फार्मर्स हैं, तो जो पेजेंट्स हैं, वो चैलेंज करेंगे बिकॉज उनका फेयर ख़त्म हो चुका है, और यही करने के लिए गांधी जी वहाँ आए थे, उनके डर को ख़त्म करने के लिए। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, अब अस्टॉनिश्ड है कि अब क्या किया जाए। द प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूटर है बेटा, प्रोसिक्यूटर क्या होता है? एक्यूज़र, जिसने एक्यूज़ किया हो, चार्ज लगाया हो, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, इसी दौरान सडनली हमने देखा अथॉरिटीज़ जो है वो विश करती हैं कि वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करें। अपेरेंटली का मतलब सडनली होता है। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी इस डिले के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। गांधी जी अब यहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया, क्यों लॉ के अगेंस्ट उन्होंने स्टेप उठाया। तो कहते हैं वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो उन्हें एक लॉ ब्रेकर की तरह बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करनी थी। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, दूसरी तरफ उन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी थी, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने उस ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट, इसलिए नहीं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं है ऑर्डर की, फॉर लॉयल अथॉरिटीज़, सॉरी लॉफुल अथॉरिटीज़, कि लॉफुल अथॉरिटीज़ के लिए ऐसा नहीं कि उनके मन में रिस्पेक्ट नहीं है, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, बट इसलिए कि वो हायर लॉ को ज़्यादा जो है उनको लेकर ज़्यादा ओबीडियंट है, रादर देन ये जो लॉफुल अथॉरिटीज़ का जो लॉ है जो इन्होंने बनाया है उसके कंपैरेटिवली। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, अब गांधी जी कहते हैं आप जो पेनल्टी मेरे ऊपर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स, अब मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि उनको 2 आवर्स के बाद में सज़ा सुनाई जाएगी, मीन्स 120 मिनट की बेल उन्हें दे दी गई। गांधी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और जज ने उन्हें बिना बेल के रिलीज़ कर दिया। When the court reconvenced का मतलब होता फिर से शुरू होना, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. अब उन्होंने गांधी जी को लिबर्टी दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार, ये सारे के सारे बिहार से आए हैं। They conferred with गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी से अपनी के सामने अपनी बात रखी। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked, गांधी जी ये पूछते हैं what would they do, कि वो क्या करेंगे अगर उन्हें प्रिजन में जाना हुआ तो। Why the senior lawyer replied they had come to advise and help him. सीनियर रिप्लाई जो लॉयर्स हैं वो रिप्लाई करते हैं कि क्यों, वो तो उनको यहाँ एडवाइस दे करने आए हैं और हेल्प करने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो खुद जेल चले गए, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, तो उन्हें एडवाइस करने वाला कोई नहीं होगा और वो सब घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, अब गांधी जी भी बहुत फर्म है, वो कहते हैं कि अगर ऐसा हम सब सोचने लगे तो हमारे जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको जस्टिस कौन दिलाएगा। गांधी डिमांडेड। द लॉयर विड्रू अ कंसल्ट, तो लॉयर्स ने अपना कंसल्ट विड्रू कर लिया। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स।
If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. अब उन्होंने ये अपने आप से आत्ममंथन करके ये डिसीजन किया कि अगर गांधी जी जैसे जो कि स्ट्रेंजर हैं, जो अभी मतलब कि अभी अभी ही आए हैं और उनके लिए ये जगह बिल्कुल नहीं है, और वो फिर भी उन पेजेंट्स के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, तो हम तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के एरिया से बिलोंग करते हैं, और अगर हम अपने घरों में वापस चले जाते हैं तो ये एक शेमफुल डिसर्शन होगा, एक तरह से अपनी ड्यूटी से एस्केपिज्म होगा. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. और उन्होंने क्या कहा कि वो उन्हें जेल में फॉलो करने के लिए रेडी हैं. द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन. अब चंपारण की जो बैटल है वो एक तरह से उसमें जीत का निशान लग चुका है, कन्फर्मेशन हो चुकी है. So students, up till now we have seen how Mahatma Gandhi had established a unity amongst the farmers, the peasants and the lawyers, and there was a unity which was required to be established, because only then the battle of Champaran can be won. So this is enough for today. The remaining part we will discuss tomorrow. Thank you.